Now, in our last video, we have seen Daniel cell. In that Daniel cell, we have seen in detail the working of the Daniel cell, wherein we saw that zinc is jumping into the solution forming zinc ions, copper is jumping into the solution forming cupric ions. Okay, zinc ions, cupric ions, they are already present, and then that entire working of Daniel cell that we have seen. Now, Daniel cell का अगर आपको EMF calculate करना है, if you want to find out the E cell, okay, E cell, it's the EMF of the cell. If you write a naught over here, that means it's the standard EMF of the cell or standard E naught cell. E naught cell is where you are measuring all the entire EMF of the cell under standard conditions of temperature, pressure, and concentration. So when temperature is 298 Kelvin, that's room temperature, 25 degrees Celsius. Pressure is 1 atmosphere, standard atmospheric pressure, and concentration is 1 mole. We call these as standard conditions. Then we use the symbol naught over here, E naught cell. Okay, so E naught cell is equal to the contribution made by the anode plus the contribution made by the cathode. So generally, the Daniel cell is capable of giving you a potential of 1.23 volt. Okay, which includes the contribution made by anode and contribution made by cathode. So what I want you to focus over here is about the E naught cell. E naught cell is the total EMF of the cell, but the total EMF, that because of that EMF of the cell, the bulb is able to glow. Okay, but this EMF of the cell depends upon individual electrode potentials. Individual electrode potential, this is the EMF of the entire cell, which is having anode plus cathode. But let's talk about the individual cell. Individual anode, individual electrode, which is anode, is also having an electrode potential. We cannot call it a cell potential because these are the two half cells. This is one half cell, this is the other half cell, and the total is forming E naught cell. So this individual electrode is also having its own potential, which is called as electrode potential. This is also having its individual potential called as the electrode potential. Okay, so how to calculate this electrode potential? Now let us see. We have this individual electrode. Say for example, we are having this electrode as zinc, and zinc is dipped into the solution of zinc ions. So we are having zinc ions over here, and you remember that zinc was jumping into solution, leaving behind electrons on the anode. So electrons were being left at the anode. So this is generating a difference of potential between the solution and the electrode itself. There is a difference of potential between the solution, that is electrolytic solution, and the electrode itself. So the electrode and the solution are generating a difference in potential. That's why this is called as electrode potential, individual electrode potential. The generation of a electrical double layer, right? There's a double layer which is being formed over here, electrical double layer. So like what was cell potential? Cell potential, yeah, EMF, yeah, potential difference in case of the entire Daniel cell was, or the galvanic cell was, the difference in electrode potentials of the zinc and copper. इसमें अगर electrode potential difference है, EMF है, तभी electrons will flow from zinc to copper. See, electricity always flows from a higher level to a lower level. Water also flows from a higher level to a lower level. Similarly, electricity there has to be a difference of potential for electrons. If both of the electrodes are at the same potential, then electrons are just not going to flow. It has to be at a higher potential. राइट याद है आपको इलेक्ट्रॉन्स, ये पूरा लास्ट, अगर आपने डैनियल सेल का वीडियो देखा नहीं, गो बैक, हैव अ लुक एट द वीडियो ऑफ डैनियल सेल. सो इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड एंड करंट वाज फ्लोइंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड. सो ये इलेक्ट्रॉन्स तभी फ्लो होंगे जब there is a difference in potential. There is something called as a potential difference, or you can say the difference in magnitudes. Then only electrons are going to flow. So individual electrode का भी potential है ना, इसमें भी तो एक डिफरेंस है, इसके सोल्यूशन में और इसके इलेक्ट्रोड में एक पोटेंशियल डिफरेंस है, विच इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. व्हाट इज दिस कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. एंड ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऐड करके ही हमको क्या मिला है,
ये दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को, कॉपर और एनोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को ऐड करके क्या मिला है, ई नॉट सेल। बट ये इंडिविजुअल, अभी चैलेंज मेरे पास ये है कि ये इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को मैं फाइंड आउट करूं कैसे? क्यों? क्योंकि सर करो ना, क्या प्रॉब्लम है, इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड है, उसका पोटेंशियल फाइंड आउट करो। कैसे करूं इसको? जब तक मैं किसी के साथ कनेक्ट नहीं करता तो उसका सर्किट पूरा नहीं होता, और जब तक उसका सर्किट पूरा नहीं होता वी कैन नॉट से दैट द सेल्स हैव बीन, आई मीन जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं होगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। और अगर कनेक्ट कर दूं दोनों को साथ में, अगर कनेक्ट कर दिया तो आई गेट द टोटल वैल्यू। इफ आई अटैच गैल्वानोमीटर और एनीथिंग लाइक दैट, तो वी आर गेटिंग द टोटल सेल पोटेंशियल, राइट, वी आर गेटिंग द टोटल सेल पोटेंशियल। तो किसी ना किसी को तो कनेक्ट करना पड़ेगा सर्किट कंप्लीट करने के लिए। सर्किट कंप्लीट करने जाए तो टोटल मिल रहा है, इंडिविजुअल नहीं मिल पा रहा है। तो इस केस में अब आ जाता है समथिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो वी हैव टू डू समथिंग विच इज कॉल्ड एज डमी इलेक्ट्रोड। एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड, एक डमी इलेक्ट्रोड अटैच करेंगे यहां पर, जिसका खुद का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, जीरो। तो जब एक डमी या एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड यहां पर अटैच करता है, स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज डमी इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड जिसका खुद का पोटेंशियल 0.000 वोल्ट है। तो ऐसे सेल को इसके साथ में कनेक्ट कर दिया, अटैच कर दिया, तो उसके बाद में जो पोटेंशियल मिलेगा, जो टोटल सेल मिलेगा, इज ई नॉट सेल हमको जो मिलेगा, तो ईएमएफ रहेगा सेल का, दैट विल बी कंट्रीब्यूशन ऑफ ई नॉट ऑफ एनोड प्लस ई नॉट ऑफ कैथोड, राइट। सो इसमें कैथोड का पोटेंशियल तो अब, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज किया तो 0.000 वोल्ट है, और इसका जो कुछ भी आंसर आ रहा है, लाइक से फॉर एग्जांपल 0.76 आ रहा है, तो दैट इज द पोटेंशियल ऑफ, आई मीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड एनोड। क्योंकि ये हम लोग ने सर्किट कंप्लीट करना था भाई, तो सर्किट कंप्लीट करने के लिए कैथोड एज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, डमी इलेक्ट्रोड ले लिया, तो हमको ई नॉट सेल यानी कि इंडिविजुअल मतलब इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मिल गया। इसको जीरो को इसमें से माइनस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन एक ऐसा सब्सटेंस है, उसका एक सेल ऐसा सेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स दे दिए जाए या ले लिए जाए, तो दोनों केसेस में लाइक इफ यू हैव 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज गिविंग यू 2H2, या हियर इट इज एक्टिंग एज द कैथोड, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं और एनोड पे इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं, लाइक 2H2 इज गिविंग अवे 4 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म 4H प्लस आयंस। तो दोनों केसेस में इट कैन एक्ट एज एनोड एज वेल एज कैथोड। अगर जिंक का चेक करना है तो कीप इट एज द कैथोड, अगर कॉपर का चेक करना है तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कीप इट एज द एनोड। तो एनोड पे इट विल बिहेव लाइक दिस, कैथोड पे इट विल बिहेव लाइक दिस, बट इन बोथ द केसेस the potential will remain as 0.4 times 0 volt, तो इट रिमेन जीरो। आप जो जीरो जो कैथोड पे रखा है तो इधर लिख देना जीरो, एनोड का पोटेंशियल मिल जाएगा, और अकॉर्डिंगली यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द कैथोड एज वेल। So this is the way we find out the individual what electrode potentials, individual electrode potentials find out कर रहे हैं किसके, एनोड के और कैथोड के, individual electrode potentials we can find out. But now according to the IUPAC convention, this formula has to be changed, has been changed. E naught cell is equal to E naught of cathode minus E naught of anode. Now can you tell me why these equations have been changed? क्या आप मेरे को बता सकते हो कि इक्वेशन इसको चेंज क्यों कर दिया? ठीक है, अब देखो यहाँ पर एनोड पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन इज ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल और कैथोड इज द रिड्यूसिंग पोटेंशियल, मतलब एनोड पे इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे थे उसका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे थे वो रिड्यूसिंग पोटेंशियल। दोनों को इक्वल प्लेटफॉर्म पे लेकर आने के लिए वी हैव मेड एनोड नेगेटिव। जब एनोड नेगेटिव हो जाएगा तो इट्स ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल विल ऑल कन्वर्ट इनटू रिड्यूसिंग पोटेंशियल, और ये कैथोड तो पहले से रिड्यूसिंग पोटेंशियल पे, नाउ दे बोथ ऑफ देम आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। नहीं समझ में आ रहा है? सुनो, से फॉर एग्जांपल आप हो, आपके फ्रेंड है, राइट, यू एंड योर फ्रेंड एक्स, राइट, आपको ये दोनों के मार्क्स कंपेयर करने हैं, राइट, तो आप इसके मैथ्स के मार्क्स कंपेयर कर रहे हो और इसके बायो के मार्क्स कंपेयर कर रहे हो, इसका कोई कंपैरिजन हुआ क्या? इससे पता चलेगा कौन होशियार है? नहीं, इसके मैथ्स अगर कंपेयर करना है तो दोनों का जो सब्जेक्ट सेम है उसमें कंपेयर करो, ठीक है, कंपेयर ही करना है तो ओके।
वैसे ही अब ये था ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल पे, ये था रिड्यूसिंग पोटेंशियल पे, तो इसको मैंने नेगेटिव कर दिया। दिख रहा है यहाँ पे एनोड पे क्या कर दिया, नेगेटिव साइन लगा दिया। नेगेटिव साइन लगाने की वजह से क्या हो गया, वो रिड्यूसिंग पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जिंक का इलेक्ट्रोड था, तो जिंक का टेंडेंसी है टू गिव अवे इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालता हूं, विच इज, आप देख रहे हो जिंक टू Zn2+ हो रहा है, जिंक टू Zn2+ हो रहा है, एंड उसका पोटेंशियल है +0.763 वोल्ट। ये इसका पोटेंशियल है जिंक का, जिंक टू जिंक आयंस। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वैल्यू, मैंने शायद सही होगा शायद गलत हो, देख लेना, बट आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। अब इस इक्वेशन को मैं उल्टा कर देता हूं, जिंक 2+, ये ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं यहाँ पे, दिस इज ऑयल, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे मैं उसको इलेक्ट्रॉन्स गेन करवा रहा हूँ, +2 इलेक्ट्रॉन्स। इसी इक्वेशन को उल्टा कर दिया और कुछ नहीं कर रहा हूँ, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे मेरे को क्या मिल रहा है, Zn सॉलिड, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो ये रिड्यूसिंग पोटेंशियल मैं कैसा लिखूंगा, Zn/Zn2+, ऐसा नहीं लिखूंगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, Zn2+2, तो ऐसा लिखूंगा Zn2+/Zn, विच विल बी इक्वल टू -0.763 वोल्ट। साइन ऑब्जर्व कर रहे हो, साइन चेंज हो गया, डिपेंड, दिस साइन इज इंडिकेटिंग द स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनियस है या नहीं है वो इंडिकेट कर रहा है। गिविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो स्पॉन्टेनियस, तो +0.763 था, ये ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल है, और ये रिड्यूसिंग पोटेंशियल, रिडक्शन उसकी फितरत नहीं है, इट इज नॉट स्पॉन्टेनियस, इट इज नॉट नेचुरल फॉर जिंक टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई इट्स शोइंग अ नेगेटिव साइन व्हिच इज इंडिकेटिंग दैट इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। इस इक्वेशन में हमको दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर आना था, दोनों रिड्यूसिंग पोटेंशियल, एक ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल एक रिड्यूसिंग पोटेंशियल हमको नहीं चाहिए था, दोनों को हमको एक ही इक्वेशन, एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर आना था, दोनों को रिड्यूसिंग पोटेंशियल में कन्वर्ट करना था। तो इसको तो पॉजिटिव ही रखा रिड्यूसिंग पोटेंशियल, और इसको, इसके पॉजिटिव साइन को नेगेटिव कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, दिस ऑल्सो गॉट कन्वर्टेड इनटू द रिड्यूसिंग पोटेंशियल। अब आपके टेक्स्ट बुक में आप एक सीरीज देखोगे जिसको नाम दिया है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सारे इक्वेशंस को, चाहे वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहे, चाहे वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहे, सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे ले लिया है, मतलब सबका रिडक्शन करवाया है, सबको इलेक्ट्रॉन्स गेन करवाए। अलाउ इधर दिखाते हैं कैमरा में, ठीक है, सबको इलेक्ट्रॉन्स गेन करवाए, देखो ये वाले टेबल की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करना चाहते हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करना चाहते हो, ठीक है, उनकी टेंडेंसी पे ध्यान नहीं दे रहे, सबको एक एक प्लेटफॉर्म पे ले लिया है, सबको आप देख रहे हो, सबको इलेक्ट्रॉन्स गेन करवाए जा रहे हैं, all of them are being made to be gained electrons। अब जब आप इस पे देख रहे हो, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद में पॉजिटिव साइन दिखा रहा है, मतलब इट लाइक्स टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। से फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, फ्लोराइड आयन इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्लोराइड आयन इज कन्वर्टिंग, इज शोइंग यू अ पोटेंशियल ऑफ +2.87। तो जब वो +2.87 का पोटेंशियल दिखा रहा है, when it is showing a potential of +2.87, that means that it is spontaneous and happy to gain electrons, and because it is happy to gain electrons, it can act as the world's best cathode। सबसे बढ़िया कैथोड कौन एक्ट कर सकता है, फ्लोरीन, फ्लोरीन गैस, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट होगा सेटअप करना, बट फ्लोरीन कैन एक्ट एज द वर्ल्ड्स बेस्ट कैथोड, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉजिटिव ये है, सबसे आसान, सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, वर्ल्ड्स मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। मतलब अगर आप फ्लोरीन को कैथोड पे रखोगे तो इसके गले में हाथ डाल के इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेगा, जो कोई भी है एनोड पे, कोई भी रहने दो एनोड पे, फ्लोरीन आराम से इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा, क्योंकि फ्लोरीन कैथोड पे हो क्या रहा है, कैथोड पे हमेशा देयर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या यहां पर भी अपने कॉपर में, डायनियल सेल में देखा था, कॉपर में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं। सो द वन विच कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स कैन एक्ट एज वेरी गुड कैथोड्स। मतलब इस टेबल में जितने भी पॉजिटिव वैल्यूज है आपके, जितने भी पॉजिटिव वैल्यूज है, दे कैन एक्ट एज कैथोड्स। फिर ये टेबल में और नीचे जाओ, ठीक है, इसमें जो नेगेटिव वैल्यूज है, ये नेगेटिव वैल्यू वाले, इनको मतलब जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन गेन करवा दे, इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद नहीं, इनको इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद है। तो क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद है, दे कैन एक्ट एज वेरी गुड एनोड्स। जितने भी नेगेटिव वाले हैं, सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन है, लिथियम, तो लिथियम इज द वर्ल्ड्स बेस्ट एनोड। जाहिर सी बात है, बताने की जरूरत नहीं, आप सबसे ज्यादा फॉर्म में है लिथियम आयन बैटरीज,
कार में लग रही है, ईवीज में लग रही है लिथियम आयन बैटरीज। ठीक है, मोबाइल्स में आपकी यूज हो रही है लिथियम, सबसे ज्यादा डिमांड में है लिथियम आयन बैटरी, क्योंकि आप देख रहे हो लिथियम इज द वर्ल्ड्स बेस्ट एनोड। इलेक्ट्रॉन्स लूज करने में सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है किसको, इधर देखो लिथियम -3.05 है, -3.05। सो लिथियम कैन एक्ट एज अ वेरी गुड एनोड। और उसी जगह पे अगर आप हाइड्रोजन को देख रहे हो जिसकी वैल्यू जीरो है, दिख रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन की वैल्यू क्या है, 0.0000 वोल्ट। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन फर्क नहीं पड़ता है, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन गेन करवाओ लूज करो, दैट्स व्हाई हाइड्रोजन कैन एक्ट एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। आ रही बात समझ में? एंड कॉपर देख लेना, कॉपर फाइंड आउट करना पड़ेगा जरा। कॉपर की वैल्यू पॉजिटिव होगी, दिख रहा है कॉपर इज पॉजिटिव वैल्यू 0.52 कॉपर के लिए। तो कॉपर कैन एक्ट बीइंग अ मेटल, कॉपर कैन एक्ट एज अ गुड कैथोड। हेंस कॉपर हम लोग ने कहां पे रखा था, कॉपर हम लोग ने रखा था इन एट द कैथोड इन द डैनियल्सन। सो इस तरीके का पूरा आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और ये है इक्वेशन को इसके लिए चेंज कर दिया है हम लोग ने। ठीक है, वेर वी हैव चेंज द इक्वेशन फ्रॉम एनोड प्लस कैथोड की जगह पे वी हैव डन कैथोड माइनस एनोड। ओके, सो अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी कन्वेंशन दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लेकर आए, रिड्यूसिंग पोटेंशियल्स पे। ओके, गॉट दिस? सो नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, तो ये वीडियो ज्यादा लंबा हो ही गया अभी ऑलरेडी, बट नेक्स्ट सेशन में वी आर गोइंग टू डू द नर्न्स्ट इक्वेशन। बेस्ड ऑन दिस नर्न्स्ट इक्वेशन हम लोग करेंगे।